بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں بھی بڑی اچھی طریقے سے گزری ہوں گی۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ یس سر۔ اور آپ یہ نیا سیمسٹر شروع ہونے کے نہایت انتظار میں اور بڑا شوق رکھتے ہوں گے کہ یہ سیمسٹر کب شروع ہوگا اور ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا سیمسٹر شروع ہو گیا خیر آخر کار۔ اچھا، سورۃ الفجر ہے ہماری۔ جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ والفجر، فجر کی قسم، اور جو ہمارا سلیبس ہے اس بار سورۃ الفجر، اور اس کے بعد کی صورتیں ہیں کچھ صورتیں نہیں بلکہ اینڈ تک ہیں، آخر تک ہیں، اور ہم سارا اگرچہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ادب عربی کی چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں پڑھتے اس کو، اور ہم صرف انہی صورتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو اور وہ چیزیں سمجھنے کی بھی نہیں ہوتی، عموماً آپ کے لیول سے وہ زیادہ اونچی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال سورۃ الفجر یہ مکی سورت ہے، اور ان چند صورتوں میں سے ہے جو ابتدا میں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان 2-4 صورتوں میں سے، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں، زیادہ تر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، صبر دلانے کے لیے، اور پچھلی اقوام کے قصے بتائے گئے اس میں، ان میں کہ پچھلی قومیں جو تھیں وہ بھی اپنے انبیاء کو تکلیفیں دیتی تھیں اور نبی کا دعویٰ قبول نہیں کرتی تھیں، اور طرح طرح کے انہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دے کر روگردانی کی، سرکشی کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان اقوام اور ان انبیاء کی امتوں سے آپ سبق سیکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور لوگوں کے لیے بھی عبرت تھی کہ جب ان قوموں نے سرکشی کی تو ان کے ساتھ ہوا کیا۔ تو یہاں سورۃ الفجر میں بھی بالکل وہی باتیں ہیں، اور اس کے بعد کی صورتوں میں بھی، اور اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی زیادہ تر جو موضوع ہے وہ اس ٹائپ کا ہے۔ اور اوورآل آپ کو معلوم ہے کہ جو مکی صورتوں کا جو موضوع ہے زیادہ تر وہ مسلمانوں کے لیے صبر، تحمل اور پھر عقیدہ کی درستگی پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الفجر میں والفجر سب سے پہلا جو لفظ ہے، فجر کی قسم، اور اس کا میں نے جو جتنی آیتیں یہاں پر کاپی کی ہیں اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع، شفع جفت، والوتر اور طاق کی قسم، اور واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم، اذا یسر اصل میں یہ ہے یسری، جو لفظ ہے یہ لفظ ہے یسری، اس کو میں سرا یسری، رات میں چلنا، یسری، اسرا، آپ یہ سورۃ اسرا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں، اچھا اسرا جو ہے نا باب افعال ہے،
یہ باب افعال ہے، یہ ہے اسرا سیر کرانا رات کو، اور یہ مجرد ہے سرا یسری سرایتن، تو رات میں چلنا، واللیل اذا یس، اور رات کی قسم کہ جب وہ چلے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا فی ذالک اس میں قسم ہے، حجر کا مطلب پتھر ہے، اور حجر کا مطلب عقل بھی ہے، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے کیا اس میں قسم ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے بعد جو مزید آیتیں ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، میں نے یہ نیچے ڈال دی، اور یہاں پر پھر عاد کا اور قوم ثمود کا اور ہود علیہ السلام کی قوم کا، اور یعنی دیگر قوموں کا ذکر ہوا، اور پھر ان پر جو عذاب ڈالا گیا اور جو ان پر تکلیفیں آئیں، جو ان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا، اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس آیت کے اندر بہت سارے موضوع ہیں، تو موضوع کو ہم آخر میں دیکھیں گے جب یہ ہم صورت پڑھ لیں گے اس کے بعد۔ والفجر، فجر کی قسم، تو اگر ہم یعنی قسم جو اٹھائی جاتی ہے، جیسے قسم جیسے شرط اور جواب شرط ہوتا ہے، جواب شرط بالکل ویسے قسم اور جواب قسم، قسم اور جواب قسم، اور قسم کا لفظ یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حرف قسم، یہ حرف ہے، جیسے حرف شرط ہوتا ہے اور وہاں پر اس میں شرط بھی ہے، تو قسم جس لفظ سے قسم اٹھائی گئی وہ ہے یہاں پر واو، اور یہ واو جو ہے نا یہ حرف جر ہے، اور واو یہی حرف جر ہوتا ہے، باقی جو واو ہے، یہ جو واو ہے یہ حرف جر نہیں ہے، یہ واو حرف عطف ہے، اور یہاں پر بھی واو حرف عطف ہے، واو حرف عطف، جو واو حرف جر ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے صرف بس، تو یہ واو ہے حرف جر قسم، اور واو جب بھی آئے گا تو اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کوئی قسم کے بارے میں کوئی چیز پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی، ہم نے نو نو سر نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، تو واو جب بھی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے اقسموں کے معنی میں، اقسموں کے قائم مقام ہوتا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں، واو حرف جر ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ حرف جر متعلق ہوتا ہے کسی کے، اب ذرا دیکھیے یہ ہے نا بسم اللہ الرحمن، تو یہ شروع میں آ گیا حرف جر، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشرعو، ابداؤ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، تو یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ متعلق ہوگا اشرعو کی، ابداؤ کی، یا اس قسم کا کوئی بھی لفظ ہو جو موقع اور مناسبت سے وہاں پر جو مناسب بن جائے، تعلق ہو اس کا، تو یہ اشرعو، تو حرف جر شروع میں آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پر متعلق کرتے ہیں، اور اگر بعد میں اسم ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہے، ہم وہاں پر مثال کے طور پر ہم نے فی البیتی زیدن، تو یہاں پر یہ خبر مقدم ہوتی ہے، متعلق تب بھی کرتے ہیں، خیر متعلق ہم تب بھی کرتے ہیں، تو یہ جو واو ہے یہ واو حرف جر ہے، تو اس کا معنی قسم، تو قسم یعنی یہ نائب ہے اقسمو کے، میں قسم اٹھاتا ہوں،
हम कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, उर्दू में मैं कसम उठाता हूँ फजर की। तो फजर का आपको मालूम है कि जब सुबह होती है तो सुबह की कसम क्यों उठाई गई, उसकी वजह क्या है? सुबह की कसम की वजह यह है कि सुबह, अब देखें, अब जब हम थक जाते हैं और हम बिस्तर पर चले जाते हैं, इंसान को आराम चाहिए। दिन भर काम करने के बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मजीद हम कोई काम कर सकें। तो जब जिस्म को आराम मिलता है तो सुबह जब होती है तो इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। असल तरीका तो यही है, लेकिन हमारी कौम ऐसी भी है कि जो सोती ही फजर में है। फिर तो असल तो यही है कि इशा के बाद आप सो जाएं और फजर की नमाज में उठें, और फजर की नमाज से भी पहले उठकर तहज्जुद पढ़ लें और फिर नमाज पढ़ लें और फिर सोना नहीं। तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बरकत की दुआ फरमाई कि, और लफ्ज़ फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूर हाज़िहिल उम्मा। बुकूर का मतलब वो जो सुबह सुबह लोग उठते हैं मेरी उम्मत से, उनके लिए बरकत, सुबह सुबह उठने वाले। तो सुबह की जो ताजगी है और जो आदमी को जो सुकून मिलता है सुबह उठकर और नींद पूरी हो जाए आपकी, तो उसका जो लुत्फ है वो कहीं भी नहीं। सुबह उठने के बाद, सुबह सिर्फ इंसान नहीं, आप देखें कि परिंदे भी उठ जाते हैं। आप परिंदे भी इंसानों से पहले उठ जाते हैं, और दरख्तों पर परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें होती हैं और सब लोग काम के लिए निकलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दिन काम के लिए बनाया और रात हमने आराम के लिए बनाया। तो जब दिन का आगाज हुआ तो सुबह हो गई, और और सुबह का जो मंजर होता है जब सूरज निकल रहा होता है तो उसका मंजर भी बड़ा बहुत खूबसूरत मंजर होता है। और वो जो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि फजर की कसम, यानी रात हो गई। एक तो इसका लफ्जी मतलब तो यही है, लफ्जी मतलब तो यही है, जब रात हो गई तो इंसान थक गया, जानवर हर चीज अपने अपने घरों में, अपने घोंसलों में, अपनी जगहों में सब चीजें चली गईं और फिर सुबह हो गई, तरोताज़ा हो गए। इसका लफ्जी मतलब तो यही है, लेकिन इसका एक माना और भी है कि फजर की कसम मतलब ये कि रात कभी रुकती नहीं। रात का मतलब वो अंधेरा, अंधेरा का मतलब यहाँ पर एक किनाया भी इस्तेमाल हो सकता है कि वो जुल्म सितम, वो तकलीफें, वो मुसीबतें। ज़रा आप ये हाजिरी लगा लें, क्योंकि हमारी शायद सिर्फ 2 क्लासें होंगी ऑनलाइन, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लासेस फिजिकल की तरफ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इन 2 क्लासों को फिर हम शीट में चढ़ा लेंगे। तो आ, आप अपने नाम की और उसी तरीके पर हाजिरी लगाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। ये जो शीट में आपके नंबर है ना, आपके पास नंबर पुराने आप लोगों को याद होंगे, तो उसी शीट के हिसाब से अपना नंबर लगाएं। अच्छा, अब इसका एक मतलब ये भी है कि रात कभी रुकती नहीं, रात जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता, तकलीफें कभी हमेशा नहीं रहती, मुसीबतें कभी हमेशा नहीं रहती, परेशानियां कभी हमेशा नहीं रहती। कोई रात ऐसी नहीं कि जिसके बाद सुबह ना हो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे हम आयत पढ़ेंगे, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, और 2 बार इन्ना मअल उस्रि युस्रा। शायद किसी लफ्ज का तकरार हो इस कदर कि एक साथ और फौरन, तो बताना यही मतलब था कि आप ये समझ रहे हैं, यानी बराह रास्त तो मुसलमानों को ये कहा गया कि अभी जो तकलीफें हैं
اور وہ कुफार की तरफ से जो कुरैश हैं उनकी तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये तकलीफ़ें हमेशा नहीं रहेंगी। और इंसान को भी हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि ये तकलीफ़ें, मुसीबतें हमेशा नहीं रहती। इंसान का काम यह है कि उसके अंदर सब्र और तहम्मुल से काम ले और आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। यानी ऐसा नहीं कि सब्र और तहम्मुल का मतलब ये नहीं होता ये कि आप थक कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं, आप आगे बढ़ते रहें। तो एक इसका मतलब तो हो गया ये। अब वल फज्र, फजर की कसम, वलयालिन अश्र, और 10 रातें। और वो 10 रातें क्या हैं? वो 10 रातें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने, चूंकि यहाँ पर वाज़ेह नहीं है, कुछ बताया नहीं गया, तो मुफस्सिरीन ने इसकी अपनी तफसीरें और तशरीह बयान की। तो सना, कोई सवाल है आपके पास? सना मुस्तकीम, कोई सवाल है आपके पास? अच्छा, 10 रातें का मतलब 10 आखिरी जो रमज़ान शरीफ की 10 रातें हैं ये भी हो सकती हैं। रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातें भी हो सकती हैं, क्योंकि इन्हीं 10 रातों में लैलतुल क़द्र है, और जिसको कहा गया कि खैरुम मिन अल्फ शहर, के जो 1000 महीने से बेहतर है। तो एक तो शायद ये भी हो सकता है उन रातों की कसम भी उठाई गई, या फिर ये भी हो सकता है कि कुर्बानी की, यानी ज़िलहज्जा की 10 हो, चूंकि मुसलमान उसमें जो बहुत बड़ी इबादत है और एक फरीज़ा है और इस्लाम का रुकन आज़म, जिसको अंजाम सर अंजाम देते हैं, हज का महीना, हज के दिन है, तो वो भी हो सकती हैं। और मुफस्सिरीन ने 10 मुहर्रम की भी बात की है कि शायद कि वो भी हो सकती हैं। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। वश्शफ़अ वल वत्र, और शफ़ा यानी जुफ्त, दो दो। तो यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, जितनी भी इंसान के अलावा ज़िंगरू चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, उसको दो दो बनाया। दो दो इंसान, जानवर, हर चीज़ जो दो दो हैं वो। तो और वत्र, ताक, तो ताक का मतलब जो सबसे अहम, जो सबसे पहली, जो जिससे इंसान का जहन जाता है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। और जुफ्त भी और वत्र भी, ये यानी जुफ्त भी और ताक भी, ये इंसानी मुआशरे के लिए भी ज़रूरी है, और वत्र जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है अकेली। बज़ाहिर इससे यही मुराद है। और रात की कसम, यानी ये अतफ है, चूंकि वो हर जगह पर, वल्लैलि इज़ा यसरी, इज़ा, अच्छा यसरी, असल में यसरी था ना, तो ये या हज़फ हो गई, या हज़फ हो गई। इख्तिताम आयात के वज़न को बरकरार रखने के लिए हम इसको नज़्म व नसक कहते हैं। इसको नसक, नज़्म व नसक, आयात का जो इख्तिताम है ना, देखिए आखिर में रा है ना, वल फज्र वलयालिन अश्र, और आखिर, और जो शुरू में सूरतें उतरी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी, उनकी ये खुसूसियत भी है, यानी जो आखिरी पारा में है, कि आखिर के जो लफ्ज़ है ना वो बिल्कुल मिलते हैं। और क्योंकि कुरान एजाज है, आजिज कर देने वाला है दूसरे लोगों को, बड़े बड़े फुसा और उदबा को आजिज कर दिया उसने। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो खूबसूरती है यहाँ पर, जो एजाज है इन आयात के अंदर, वो शेर व शायरी के, जैसे शेर व शायरी से मिलता जुलता, यानी वल फज्र रे, वलयालिन अश्र रे, वश्शफ़अ वल वत्र,
वल्लैलि इज़ा यस, और चीज़ें भी हैं हम जो इसमें फसाहत और बलागत में पढ़ेंगे। अब ज़रा देखें यहाँ पर, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, दाल, इरम ज़ातिल इमाद, दाल है आखिर में, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिल वाद, व फिरऔन ज़िल। देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक दाल चल रहा है, यहाँ तक दाल, और फिर उसके बाद यहाँ पर नून, और फिर आखिर में फिर, तो मतलब ये जो अल्फाज की खूबसूरती है और कलिमात बिल्कुल बड़े खूबसूरत एक जैसे, और तरन्नुम है इसके अंदर, हम इसको तरन्नुम भी कहते हैं, तरन्नुम भी है। तरन्नुम का मतलब यानी गुनगुनाहट। आप जरा पढ़ के देखें इसको, और तर्जमा भी आपको मालूम हो तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत लुत्फ आता है इंसान को जब इसका तर्जमा भी मुकम्मल पढ़ लें और इसको सरफी नाहवी तौर पर भी जान लें और फसाहत और बलागत के एतबार से भी आयात को जान लें, और फिर आप पढ़ें कभी अकेले में बैठकर और लफ्ज़ों पर गौर करें, और इनके लफ्ज़ भी मिलते, यानी कानों को भी लुत्फ, सुनने वालों को भी लुत्फ, और जो माने का आपको लुत्फ और खुशू होगा उसकी कोई मिसाल नहीं। तो बहरहाल ये हमारा आज चूंकि टाइम कंप्लीट होने वाला है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर इसमें आपने कहा था कि एक हर्फ कसम होगा, तो इसमें आपने अभी डिटेल बताई नहीं। हर्फ कसम की अभी हम इसको, चूंकि आज मैंने बात एराब की तो शुरू भी नहीं की ना, अभी नावी बात शुरू भी नहीं की आज, ऐसा है ना? ठीक है सर। हाँ, जी सर। वो मैंने इतना आपको बता दिया कि हर्फ कसम जो है ना, ये वाव और इसी तरीके से ते भी होती है, तल्लाही ते भी है, तो ये भी हर्फ जर तभी होता है जब कसम हो, तल्लाही। तो ये उक़सिमु के कायम मकाम है। जैसे अदू होता है ना, अदू हम कहते हैं ये जुमला, या ज़ैदू, तो हम कहते हैं ये हर्फ, ये जुमला निदाइया है। निदाइया क्यों? हम कहते हैं ये अदू के कायम मकाम है, असल में ये है अदू, मैं पुकारता हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। तो इंशाल्लाह हमारी यानी अभी आज और कल की क्लास 40 मिनट की ही होगी। दूसरे इसके बाद जब ये डिस्कनेक्ट होने वाली है तो मीटिंग इसके बाद नहीं होगी, कल होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप उन चीज़ों को याद करें जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ताकि फिर ठीक तरीके से आप क्लास में वापस आएँ। और आपको अब ये है कि हमने जो अब तक शुरू से जो चीज़ें पढ़ी थी उनको, वो चीज़ें समझ में आएंगी तो आप ये समझ पाएंगे, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कल जो हम पढ़ेंगे फिर सब आप बिल्कुल कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी आपको। तो इंशाल्लाह सब लोगों ने हाजिरी लगा ली होगी मेरे ख्याल में, कोई रह ना जाए।